Hi guys, welcome to Unacademy's 9th and 10th CBSE channel. I am Shreya Kaushal. So for those of you जो आज first time मेरा video कोई देख रहे हैं, I will quickly introduce myself. तो as I said, I am Shreya Kaushal. I am pursuing sociology. मैं अभी final year में हूँ अपने. I am a final year student in Delhi University, Miranda House. I'm a civil services aspirant. I would be likely to appear in 2022. I'm a musician, a painter, and a reader. And most importantly, I'm your guide through 9th standard chemistry. मैं आपको 9th standard की chemistry पढ़ाऊंगी. मैंने अभी तक आपको 2 chapters पढ़ा दिए हैं, which is matter in our surroundings. And मैंने आपको इज मैटर अराउंड अस प्योर भी पढ़ाना कंप्लीट कर दिया है. Okay, so these are your first 2 chapters. I am aiming to complete your entire syllabus in the month of September itself, which I feel is going to be really amazing because that would give us a lot of time to revise, है ना. तो इस मैटर अराउंड अस प्योर को मैंने आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. And this lesson which I'm introducing to you is a new sort of a lesson जो मैंने आपको introduce किया है. आप crash course sort of मान सकते हैं ऐसे. This is 1 hour 1 chapter. यानी कि मैं आपका 1 घंटे में पूरा चैप्टर जल्दी जल्दी ब्रीफली सारे कंसेप्ट समझा के एक्सप्लेन कर दूंगी. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए या फिर अगर आपको क्विक रिविजन चाहिए ऑफ द एंटायर चैप्टर, देन यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस सीरीज इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और जो आपका 4th चैप्टर है उन तीनों का मैं 1 hour 1 चैप्टर का सीरीज बनाऊंगी एंड आई विल कंप्लीट ऑल ऑफ दोज. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ दिस काइंड इज मैटर अराउंड अस प्योर 1 hour 1 चैप्टर. लेकिन सिंस आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग टू टीच आई मस्ट टेल यू अबाउट अनअकैडमी बिकॉज एंड ऑल द बेनिफिट्स जो कि अनअकैडमी के साथ आपको मिलते हैं. So as I said, crack CBSE class 9th with India's largest online learning platform. आपको पता है कि Unacademy is India's largest and its biggest online learning platform. We have India's top educators teaching all subjects, all sorts of competitive exams, all subjects. So Unacademy पे ये सारे benefits हैं. इन benefits के बारे में मैं आपको बताती हूँ. अगर आप Unacademy पे नहीं है तो Unacademy पे डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं. एवरी डे आपको अपने मेंटर के साथ बात करने मिलेगा. You get to engage in discussions with us. आप आंसर पोल्स के साथ हमारे से इंटरेक्ट कर सकते हैं. वी कीप आंसर पोल्स एवरी डे जहाँ पे आप लाइव उनका आंसर करिएगा. सो इट्स वेरी एंगेजिंग ऑल्सो, इट्स सुपर फन. सो वी हैव डेली लाइव क्लासेस. ऑफकोर्स ऑन प्लस वी हैव लाइव क्लासेस, अदरवाइज ऑल्सो फ्री लाइव क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं अगर आपको कोई भी देखनी है. मैंने खुद बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट कराई हुई हैं. अगर आपको मेरा देखना है देन यू कैन गो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, go check it out. Then we have live tests and quizzes. There are dedicated tests and quizzes sessions. After we complete teaching a chapter, we conduct quizzes on them ताकि आपकी performance आप evaluate कर पाएँ. आपको analysis मिलेगी detail on your performance. So I think all of that is amazing. Then of course with Unacademy Plus आपको detailed structured courses मिलेंगे. यानी कि आपको परेशान नहीं होना है कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे. All of that is on us. All you have to do is to tune into Unacademy Plus, get the subscription and study because everything else is our responsibility. आपको बस पढ़ाई करनी है. कैसे, कब, tests, quizzes, आपके performance, it's all we will take care of that. So with Unacademy Plus, you get structured courses. All our courses are structured in line with your exam syllabus to help you prepare for it to the best. Then of course once you get Unacademy Plus, एक subscription से आपको unlimited access होता है सारे subjects का, not just chemistry, not just history. You get all of your subjects and all of the pre-recorded videos you can watch from the comfort of any of your devices. यानी कि आपका लैपटॉप चार्ज नहीं, आप फ़ोन से देखिए, आप लैपटॉप बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं, you can watch it on your tab, whatever. One subscription gets you all the pre-recorded videos,
of all of the subjects, all right? And not just that, you get to be taught by the top educators in the country जो कि अपने fields में experts है. All of them are experts in their own fields and you get to be taught by them, and I think this is amazing. Okay, apart from that, of course, as I said, आपको किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे. यू गेट योर मैथ्स का कोर्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, ऑल टॉट बाय टॉप एजुकेटर्स. Okay, one subscription and you get all of that. And I'm gonna get to the best part. This subscription you can get not for 11,500, just for 11,250 अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें. याद रखिएगा, बिना रेफरल कोड के आप मत लीजिएगा, आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए एंड आपको 10% ऑफ मिलेगा. ओके, गेट द 12 months पैक. आई वुड सजेस्ट, अभी सितंबर चल रहा है, अगर आप अभी भी 12 months पैकेज लेंगे, इट्स गोना बी ग्रेट फॉर यू. आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपको सबके साथ आप प्रिपेयर कर पाएंगे. सो गेट द 12 month सब्सक्रिप्शन. इट्स जस्ट फॉर 11,250 गाइज. ओके, डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स, टेक सम टाइम आउट, get the package, get a 10% off. Of course, याद रखिएगा, मेरा referral code is just my name, SHRIYA, and you can get a 10% off. यानी कि आपको अपना 11,250 में you will get 1 year subscription, all the subjects by the top educators, है ना? तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको ज़रूर 10% ऑफ अवेल करिए मेरा कोड यूज़ करके, एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑल्सो. सो दैट्स अमेजिंग. ओके, सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. एंड कैसे गो फॉर दैट? गो राइट नाउ, इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर और द प्ले स्टोर. मेक एन अकाउंट ऑन दैट एंड follow me on @shriya_kaushal1, जो कि मेरा यूज़र नेम है. वहाँ पे मैंने बहुत सारे लाइव क्लासेस कंडक्ट करा के रखे हैं, फ्री लाइव क्लासेस, जो कि आप देख सकते हैं टू गेट एन आइडिया ऑफ ऑल द अमेजिंग कंटेंट की जिसका आपको एक्सेस होगा वंस यू गेट प्लस. सो वॉच दोस फ्री लाइव क्लासेस, अपने पेरेंट्स को दिखाइए, उन्हें बताइए कि कितना बेनिफिशियल है, and get the subscription, guys. So first step is to download the app, make the account, follow me, watch my videos, show it to your parents, show it to your guardian, and get the subscription, and also get a 10% off by using my referral code, which is my name, Shriya, SHRIYA. EYA nahi hai, Shriya. Okay, so this is everything about the subscription. Get it and we will crack it. So let's crack it with Unacademy. Also, if you haven't yet subscribed to our Telegram channel, do subscribe to our Telegram channel, which is Questions 10 CBSE. We constantly give you good quizzes, updates on हमारे classes कब conduct कर रहे हैं, सारे subjects के, all of our educators. You will stay updated कब कौन सी classes conduct हो रही हैं. So do join our Telegram channel, Questions 10 CBSE. The link is also in the description. So without further ado, let's crack it together, guys. Get the subscription, use the referral code, get a discount, do everything that I just said, and we will crack it together. So also, if you want, then you can also take, of course, 9th, 10th, 11th, 12th. If you want to think of the long term, then आप कोई भी पैकेज लीजिए जो कि आपकी नीड्स को बेस्ट सूट करता है. अगर आपको 9th to 12th का लेना है या 10th, 11th, 12th का लेना है, वट एवर सूट्स यू द बेस्ट. सिंस आप 9th में है, देन यू कैन टेक दिस 48 months का पैकेज. ऑल्सो बाय यूजिंग माई रेफरल कोड, गेट अ 10% ऑफ श्रिया. एंड आप कोई भी कोर्स चूज़ करिए, आप उस पर मेरा रेफरल कोड यूज़ करिएगा तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. ठीक है, तो सिट विथ योर पेरेंट्स, डिस्कस एट लेंथ कि आपको किस कोर्स की ज़रूरत है, एंड आप वही कोर्स लीजिए और उस पर 10% ऑफ अवेल करिए. ओके, all right. So we are, is matter around us pure? ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो जो कि मैंने 3 parts में डिवाइड किया था, then you can definitely watch this. This is 1 hour 1 chapter. So let's start with it. हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है. ओके गाइज, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है?
हम जब बाहर जाते हैं तो हमने देखा है कि प्योर घी, प्योर ये, प्योर वो, बट वॉट वी यूज इन आवर एवरी डे लाइफ एंड कॉल इट प्योर, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्योर दैट वी नो एंड वी यूज साइंटिफिकली. तो साइंटिस्ट जब प्योर बोलते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? तो साइंटिफिक टर्म्स में प्योर सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस होता है जिसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने केमिकल नेचर में सेम होते हैं, है ना. सो व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? अ प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस इन विच ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जिन सारे पार्टिकल्स जिनसे वो बना है वो अपने केमिकल नेचर में सेम है. तो क्या दूध is milk pure substance? No, it's not. Why? Because milk is made up of water, fat and proteins, all three of whom are different in their chemical nature. तो एक pure substance consists of a single type of particles. Okay? So what is pure substance होने का criteria? It consists of a single type of particles. ठीक है. तो एवरीथिंग दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का केमिकल नेचर अलग है, कैन बी क्लासिफाइड एज इम्प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. तो मिल्क क्या हो गया? मिल्क को वी कैन से इम्प्योर सब्सटेंसेस है ना. सो ऑल ऑफ दीज आर इम्प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम होते हैं अपने केमिकल नेचर में. ओके. नाउ लेट्स गेट टू नो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है. तो गाइज मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. होमो का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम. एंड हेट्रो का क्या मतलब होता है गाइज? हेट्रो मीन्स डिफरेंट. बस आप इसी से समझ जाइए. होमो सेम, हेट्रो डिफरेंट. तो आप इससे अपनी क्या प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं? होमोजेनस मिक्सचर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी टाइनी, दे आर यूनिफॉर्म इन देयर कॉम्पोजिशन. टाइनी पार्टिकल्स less than 1 nanometer in size. Okay, tiny particles है ना. उसके बाद क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, यानी एक बराबर. हेट्रोजेनस पार्टिकल्स आर यूजुअली बिगर दैन होमोजेनस. दे आर बिगर देन द होमोजेनस पार्टिकल्स. ज़्यादातर ये काफ़ी बड़े होते हैं, विजिबल टू द नेकेड आई. इन सम सॉर्ट्स ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर्स ये उतने बड़े नहीं होते, जैसे कोलॉइड्स, जो कि हम आगे जानेंगे. सो बिगर पार्टिकल्स है ना, नॉन यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन. ज़्यादातर जो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं by using a lot of like simple techniques जैसे filtration, sieving, hand picking, जैसे चाय पत्ती और चाय etc. So इसका एग्जाम्पल हो गया, आप देख लीजिए, लेमोनेड है ना, एयर. So all of these are examples of a homogeneous mixture. And इसका आप देख लीजिए सैंड एंड वाटर है ना. सैंड एंड वाटर क्यों है होमोजेनस मिक्सचर? बिकॉज इसके पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते, यूनिफॉर्म नहीं होते कॉम्पोजिशन में. आप मिला के छोड़ दीजिए तो वो सेटल डाउन कर जाएंगे, है ना. चाय पत्ती और चाय जैसे कि मैंने बताया था. तो सब समझ गए. होमो मतलब सेम, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, छोटे पार्टिकल्स. हेट्रोजेनस मतलब बिगर पार्टिकल्स, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, अनस्टेबल मिक्सचर होता है ज़्यादातर, है ना. तो अब चलिए होमोजेनस हेट्रोजेनस के बारे में हम जान गए, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जान गए. अब आगे बढ़ के पढ़ते हैं हम सॉल्यूशंस के बारे में. तो सॉल्यूशंस जब हमारे दिमाग में आते हैं गाइस, तो हम यूजुअली सोचते हैं कि सॉल्यूशन तो लिक्विड का होता है. बट अब हम जब सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे सॉल्यूशन तो सॉलिड्स का भी हो सकता है, सॉल्यूशन तो गैसेस का भी हो सकता है ना. सो अब चलिए जाने व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, एलॉयज क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है और कोलॉइड्स क्या होते हैं. ठीक है, these are separate from this. okay, तो चलिए सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं. तो what is a solution? सॉल्यूशन क्या होता है?
तो गाइस सबसे पहले तो सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। जैसे ही मैंने होमोजेनस मिक्सचर बोल दिया तो आप यहाँ से समझ जाइए कि सोल्यूशन का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था होमोजेनस मिक्सचर्स का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है। तो अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो लेमनेड का मैंने एग्जांपल दिया था, लेमनेड क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। सोडा वाटर, ये क्या सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन हो गया, गैस का और वाटर का, लिक्विड का। Even though generally a solution is perceived as being a liquid, they can also be solid. For example, alloys. यानी कि ज़्यादातर हम मानते हैं कि solution होगा तो liquid चीज़ों का होगा, but solution solids का भी हो सकता है, जैसे alloys solid का solution है, और gaseous जैसे कि air जो हमारे अराउंड है वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो एयर भी एक सोल्यूशन है। ओके, तो सोल्यूशन हैव होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल, यानी कि दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, उनके पार्टिकल लेवल पे होमोजेनिटी है अमंगस्ट इट्स पार्टिकल्स। ओके, सो व्हाट इज अ सोल्यूशन, आप समझ गए। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है, इसमें होमोजेनिटी होती है एट पार्टिकल लेवल। ठीक है, अब चलिए जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन गाइस होमोजेनस मिक्सचर होता है, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी। इससे आप एक सोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, ये जान के कि वो होमोजेनस मिक्सचर है। कैसे, क्योंकि हमें होमोजेनस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं। अगर हम बोलेंगे सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, तो होमोजेनस मिक्सचर्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो एक सोल्यूशन को भी अप्लाई करेंगी। ओके, जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के, दे आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, जैसे कि होमोजेनस मिक्सचर का भी एक प्रॉपर्टी है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, नेचुरली इतने छोटे हैं तो। ओके, तो उसके बाद, सिंस द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू इट, एंड देयरफॉर द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट इजंट विजिबल, यानी कि इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कोई भी होमोजेनस मिक्सचर गाइस, इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि अगर एक आप लाइट पास करिए, टॉर्च से लाइट जलाइए, आप एक ग्लास पानी लीजिए, ठीक है, आप उससे लाइट जलाइए, उसमें पास करके, लेमोनेड में ही पास करके जलाइए। ठीक है, लेमोनेड एक सोल्यूशन होता है, उसमें आप पास करके जलाइए पानी, आपको लाइट नहीं दिखेगी गोइंग थ्रू, एंड आपको उसके बीच में से लाइट नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट जो पास कर रही है उसे स्कैटर नहीं करते हैं और हमें विजिबल नहीं होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगी, बट अभी आप इतना जान लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि सोल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है, इसलिए दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू इट, और वो पासेज उसका विजिबल नहीं होता है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये सोल्यूशन स्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि आप एक सोल्यूशन लीजिए ऑफ शुगर एंड वाटर, ओके, उसे मिक्स करिए, तो आप अगर उसे कुछ देर छोड़ भी दीजिएगा तो शुगर उसमें बैठ नहीं जाएगा, नहीं बैठा मतलब सोल्यूशन स्टेबल है। The particles do not settle down when left undisturbed. और प्रॉपर्टी क्या है सोल्यूशन की, कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन। सल्यूट यानी कि जो हम मिक्स करते हैं, इट इज द यूजुअली द स्मॉलर क्वांटिटी, है ना। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम मिक्स करते हैं। सल्यूट क्या होता है, जिसे हम मिक्स करते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें हम मिक्स करते हैं, है ना। इट इज यूजुअली द लार्जर क्वांटिटी, है ना। तो सल्यूट में 6 अल्फाबेट्स होते हैं, 1 2 आई एम सो सॉरी, सल्यूट में 6 अल्फाबेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड सॉल्वेंट में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 अल्फाबेट्स होते हैं, तो ये 6 है, दिस इज द स्मॉलर क्वांटिटी, तो ये वो चीज़ है जिसे मिलाया जाता है, और सॉल्वेंट इसमें 7 है, दिस इज द लार्जर क्वांटिटी, ये वो चीज़ है जिसमें मिलाया जाता है। ठीक है, जिसे मिलाया जाता है एंड जिसमें मिलाया जाता है। तो सल्यूट के पार्टिकल्स एक सोल्यूशन में
यानी कि शुगर और वाटर अगर हम लेके चल रहे हैं तो शुगर सल्यूट होगा, शुगर हम मिला रहे हैं और जिसमें मिला रहे हैं यानी कि वाटर, तो वो सॉल्वेंट होगा। तो सल्यूट के पार्टिकल्स एक सोल्यूशन में फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं होते, ठीक है। फिल्ट्रेशन इज जब वो एक फिल्टर पेपर आता है ना कोनिकल, जिसमें ऐसे 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 होते हैं, तो अगर एक हेट्रोजेनस मिक्सचर जिसके पार्टिकल्स कंपैरेटिवली बड़े होते हैं उसे आप फिल्टर पेपर से करिएगा तो वो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में रह जाएंगे और जो भी सॉल्वेंट है आपका वो नीचे आ जाएगा, पास थ्रू कर जाएगा। ओके, सो दैट इज फिल्ट्रेशन। तो सल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते क्योंकि वो छोटे होते हैं। क्लियर? सो ये क्या थे? ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। एक्सक्यूज मी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन अब जानते हैं। तो सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है? तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उससे मतलब होता है कि रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। ओके, यानी कि एक सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। जैसे पानी और चीनी में का हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, पानी चीनी का सॉल्यूशन, तो उस वाटर में कितना शुगर है ये उस वाटर और शुगर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर? सो द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हम 3 टर्म्स में बच्चों मेजर करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक डाइल्यूट हो सकती है, कॉन्सेंट्रेटेड हो सकती है और सैचुरेटेड हो सकती है, ठीक है। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड ये रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स यानी कि आप 2 बीकर लीजिए, ठीक है, दोनों बीकर में 10 ml वाटर लीजिए। एक बीकर में आप 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी कि एक ब्लू कलर का जो पाउडर होता है 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालिए और दूसरे बीकर में आप 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालिए, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिएगा कि बीकर 2 का कलर लाइट ब्लू हो गया है और बीकर ए का कलर लाइट ब्लू हो गया है और बीकर बी का कलर ब्लू है, लेकिन इट इज अ डेंसर ब्लू। वाई? बिकॉज इसमें हमने 1 चम्मच डाला था और इसमें 2 चम्मच डाला था। तो हम बोलेंगे बीकर ए इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन कंपेयर टू बीकर बी विच इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब मैं बोलती हूँ कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटिव टर्म्स है तो मेरा ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद हम सैचुरेटेड की बात करते हैं। सैचुरेटेड यानी कि आप एक ग्लास चीनी और पानी लीजिए, एज यूजुअल हमारा क्लासिक सोल्यूशन। आप एक ग्लास पानी में चीनी मिलाते रहिए, ठीक है। उसमें आफ्टर 1 पॉइंट यू विल सी दैट यू कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर शुगर। द पॉइंट एट द टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे, मान लीजिए हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, आप उसमें जितना चीनी मिला चुके हैं और जिससे ज़्यादा चीनी नहीं मिला पा रहे हैं वो सोल्यूशन सैचुरेटेड है। So at any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, यानी कि एक solution जिसने उतना solute मिला लिया है जितना वो मिला सकता है at a temperature, उसे हम saturated बोलते हैं, ठीक है, कि उससे ज़्यादा हम नहीं मिला पाएंगे। यानी कि this solution is saturated at this temperature, it will not be able to dissolve any more solute. खत्म। That is all saturated is. At a particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is called saturated. Solubility क्या होती है guys? Solubility होती है कि amount of solute that is present at this temperature is termed as solubility. तो जब एक solution saturated होता है तो the amount of solute that is present in that saturated solution at that temperature, वो अमाउंट ऑफ सल्यूट उस सल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है। यानी कि रूम टेम्परेचर पे जितना आपने चीनी मिला दिया है और उससे ज़्यादा चीनी आप नहीं मिला पा रहे हैं, तो शुगर एंड वाटर के सल्यूशन की सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ शुगर दैट इज डिसॉल्व्ड टू मेक द सल्यूशन सैचुरेटेड। ओके, सो द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट एट दिस टेम्परेचर जिस पे वो सैचुरेट हो गई है सल्यूशन, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। एज सिंपल एज दैट। सो अब हम समझ चुके हैं डाइल्यूट क्या होता है सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इन दोनों को हम रिलेटिव क्यों बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और सिमिलरली सैचुरेटेड से सॉल्युबिलिटी का हमारा क्या मतलब होता है, ठीक है।
अब चलिए जानते हैं कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो गाइस, जब अमाउंट ऑफ सल्यूट एक सोल्यूशन में कम होता है सैचुरेशन पॉइंट से, तो हम उसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं। यानी कि सिंपल टर्म्स में हम उसमें और सल्यूट मिला सकते हैं, अभी वो सैचुरेट नहीं हुआ है, तो उस सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। The amount of solute in a solution is less than the saturation point, then it is called unsaturated. Different substances in a given solvent have varying solubilities at different levels. यानी कि हमने अपना solution लिया of water and sugar and हमने solution लिया of say salt and sugar. तो the amount of salt that we can dissolve in water can be to reach its saturation point is different than the amount of sugar that we can dissolve in water to reach उस solution की saturation point. समझ रहे हैं? क्योंकि solute के साथ saturation point और solubility differ करता है। यानी कि मतलब नहीं है कि अगर जो saturation point water का sugar के साथ है, वही saturation point water का copper sulfate या किसी और solute के साथ रहेगा। यानी कि at different substances in a given solvent मान लीजिए water है, तो different substances in water have varying solubilities at different levels. यानी कि different substances in a given solvent के different solubility होती है at different levels. Clear है? Okay. उसके बाद concentration of a solution can be expressed in 3 ways. यानी कि हम 3 तरह से concentration of a solution calculate कर सकते हैं, ज़्यादा तरह से कर सकते हैं, बट आपके बुक में 3 तरीके दिए हैं। एक है mass by mass percentage, एक है mass by volume percentage और तीसरा है volume by volume percentage. ओके, तो मास बाय मास परसेंटेज में आपका सल्यूट का मास दिया होगा और सॉल्वेंट का कभी कभी मास दिया रहता है, तो सल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिला के आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। तो मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 गिव्स अस द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। उसके बाद अगर आपको सल्यूट का मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप मास ऑफ सल्यूट लीजिए, उसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। उसके बाद आपको सल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। आप दोनों को डिवाइड करिएगा और 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपको वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, सो दीज आर द 3 ways गिवन इन आवर बुक टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो गाइज अब हम समझ गए। अब चलिए एलॉयज के बारे में जानते हैं। एलॉयज क्या है? एलॉयज ऐसे मिक्सचर्स हैं ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या मेटल और नॉन मेटल के, जो कि सेपरेट नहीं किए जा सकते फिजिकल प्रोसेस से, है ना। उनको हम क्यों मिक्सचर मानते हैं? मिक्सचर इसलिए माना जाता है, मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होती है गाइस, कि मिक्सचर्स अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है ना, वो अपनी उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिक्सचर बना है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम एलॉय को मिक्सचर मानते हैं, बिकॉज जो भी मेटल या मेटल और नॉन मेटल से वो एलॉय बना है, वो मेटल और नॉन मेटल अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करते हैं इवन दो दे आर एन एलॉय। तो जब प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर विजिबल इवन व्हेन एन एलॉय। कॉम्पोजिशन वेरी कर सकता है एलॉय का, यानी कि अलग अलग परसेंटेज ऑफ मेटल को मिला के अलग अलग एलॉयज या सेम एलॉयज बन सकते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल के लिए ब्रास है। ब्रास इज मेड अप ऑफ 70% कॉपर एंड 30% जिंक। इट इज एन एलॉय। और एलॉयज होते हैं ब्रॉन्ज, स्टील एटसेट्रा। ओके, सो ये सब एलॉयज हैं। ओके, तो alloys are mixtures of 2 or more metals or a metal and a non-metal which cannot be separated by a physical process. It is considered a mixture. Why? Because its constituents are visible even in an alloy and its compositions can vary. As simple as that. Okay, alloy homogeneous mixture होता है। अब चलिए जाने एक heterogeneous mixture के बारे में, जिसका नाम है suspension. Suspension is a heterogeneous mixture जिसमें सल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं करते हैं सॉल्वेंट में और सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये है सस्पेंशन। इसका एग्जाम्पल सस्पेंशन का आप ले सकते हैं से सैंड एंड वाटर। ओके, इट विल फॉर्म अ सस्पेंशन, या फिर चॉक पाउडर एंड वाटर, ये सस्पेंशन फॉर्म करेगा। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि दे कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। ठीक है, सिंपल है ये। तो
अब हम प्रॉपर्टीज जान रहे हैं सस्पेंशन की। उसके बाद अगर आप कुछ देर तक सस्पेंशन को छोड़ दें, यानी कि अगर आप चॉक पाउडर और वाटर का जो भी आपका सस्पेंशन है आप उसे कुछ देर तक ऐसे मिक्स करके छोड़ दें, तो चॉक पाउडर नीचे सेटल कर जाएगा, यानी कि ये जो भी है सस्पेंशन, ये जो भी मिक्सचर है ये अनस्टेबल है। सो व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड द पार्टिकल्स सेटल डाउन, मीनिंग कि इट इज अनस्टेबल एंड द कंटेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यानी कि हम इसे अगर फिल्टर करेंगे तो आपका जो चॉक पाउडर है वो इधर रह जाएगा फिल्टर पेपर में, एंड योर सॉल्वेंट विच इज वाटर इन दिस केस, इट विल accumulate नीचे। Okay, so since its particles are big enough, it can be separated by the process of filtration, है ना। And third property क्या है, as the particles settle down, जो सस्पेंशन होता है, यानी कि कुछ देर तक तो ये सस्पेंडेड रहेगा, जब तक आपने मिक्स किया हुआ है चॉक पाउडर तब तक अगर आप बीम ऑफ लाइट दिखाएंगे तो वो पास करेगा। क्यों? क्योंकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बीम ऑफ लाइट दिखेगी। लेकिन कुछ देर बाद जब आप उसे छोड़ देंगे तो वो सेटल डाउन कर जाएगा, जैसे हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा है ना, इट विल सेटल डाउन बिकॉज इट इज अनस्टेबल, एंड व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन इट विल नो लॉन्गर शो द टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अब पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड थे मिक्सचर में इन दिस स्टेज, ये इस स्टेज में ये दिखाएंगे टिंडल इफेक्ट, बिकॉज ये जो पार्टिकल्स है ये स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट को, आपको दिखेगी, लेकिन इस स्टेज पे इट वोंट शो द टिंडल इफेक्ट। ओके, एट दिस स्टेज इट वोंट शो द टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल कर चुके हैं, तो अब इसमें सस्पेंडेड नहीं है, इसलिए बीम ऑफ लाइट आपको नहीं दिखेगी। ओके, so as the particles settle down the suspension breaks and therefore the light isn't scattered anymore. So these are the three stages. ये तो खैर सोल्यूशन है बस पानी का, इसमें आपने चॉक पाउडर मिलाया तो ये सस्पेंशन बन गया, सस्पेंशन से आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा, फिर कुछ देर बाद आप छोड़ दीजिएगा तो ये सस्पेंशन का जो भी पार्टिकल्स हैं दे वोंट रिमेन इन सस्पेंडेड एनी मोर, दे विल सेटल डाउन एंड इट वोंट शो द टिंडल इफेक्ट एनी मोर। ठीक है, तो सस्पेंशन हम सब समझ गए हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ें, अब जानते हैं कोलॉइड्स के बारे में। कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना गाइस, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि कोलॉइड और होमोजेनस, कोलॉइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर गाइस, कोलॉइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लेकिन सिंस कोलॉइड के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इट कैन बी कंफ्यूज्ड एज अ होमोजेनस मिक्सचर, बट ये होता नहीं है होमोजेनस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। कोलॉइड के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन, और क्योंकि कोलॉइड में पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं इसलिए हमें लग सकता है कि ये जो भी मिक्सचर है इट इज़ होमोजेनस, बट इन रियलिटी ये होमोजेनस नहीं होता है, ये हेट्रोजेनस होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम मिल्क ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, बहुत कोलॉइड्स आर वेरी कॉमन अराउंड अस। ओके, वी कैन ऑल्सो टेक क्लाउड्स एज एन एग्जाम्पल। ओके, so there are a lot of colloids around us. आपकी बुक में काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, शेविंग क्रीम एंड ऑल ऑल्सो। कोलॉइड कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कोलॉइड है? हाउ इट शोज द टिंडल इफेक्ट, शो करता है, यानी कि अगर आप एक बीम ऑफ लाइट ले तो वो उससे पास करेगी बराबर, बिकॉज इवन दो द पार्टिकल्स आर स्मॉल दे स्टिल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब चलिए कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, जो कि मैंने आपको ऐसे वर्बली बता दी, बट देन लेट्स लुक एट इट इन अ रिटन फॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, एक तो है कि ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, भाई ये तो क्लियर है। सेकेंड क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर ये स्मॉलर होते हैं देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, यानी कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, काफ़ी मतलब इसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट। ओके, सिंस द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, इसलिए हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, बट स्टिल इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, डज स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, एंड देयरफॉर द पैसेज ऑफ द लाइट इज विजिबल। ओके, उसके बाद ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं नेचर में, यानी कि अगर आप एक कोलॉइडल मिक्सचर को छोड़ दें तो वो सेटल नहीं करेगा, जैसे कि सस्पेंशन सेटल कर गया तो कोलॉइड सेटल नहीं करेगा, यानी कि दे आर रिलेटिवली स्टेबल इन नेचर। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है जो हमने पढ़नी है? द सल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टरेशन बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड फिल्टर्स कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर्स। ठीक है,
नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं होगा, स्पेशलाइज्ड फिल्टर्स, अल्ट्रा फिल्टर वगैरह से होगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस है जो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे, उससे भी इसके जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं। तो गाइज हमने जान लिया है सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, कोलॉइड्स के बारे में। उससे पहले हमने जाना होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बारे में, और उसके पहले हमने जाना प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में मैंने बोला था मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो चलिए जाने कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट में द पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई, यानी कि दे कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। यानी कि टिंडल इफेक्ट वो होता है जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे आसपास, जो भी हम ले रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, यानी कि इमेजिन वी टेक द एयर अराउंड अस, सो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ स्कैटरिंग लाइट। सो एयर हमें द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर दे शो द टिंडल इफेक्ट। So this scattering is called the Tyndall effect. कि किसने who came up with the Tyndall effect? John Tyndall एक scientist थे. He came up with the Tyndall effect. It is coined after the scientist who discovered it, who is John Tyndall. तो ये जो इफेक्ट है इट कैन बी सीन जब एक बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल एंड द लाइट इज स्कैटर्ड बाय डस्ट एंड स्मोक प्रेजेंट इन द एयर लाइक दिस। काफ़ी बार हम एक अंधेरे रूम में घुसते हैं तो उसमें जो विंडो है उससे आप देखिएगा कि ऐसे लाइट आ रही है, कैसे हमें लाइट दिख रही है, तो दिस इज द टिंडल इफेक्ट। इट इज थ्रू, अगर आप पास जाइएगा उस लाइट के और देखिएगा तो आपको शायद उससे डस्ट पार्टिकल्स भी दिखे। सो दीज डस्ट पार्टिकल्स आर स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट। ओके, सो द टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन जब सनलाइट पासिस थ्रू अ डेंस कैनोपी, जैसे कि इसमें हमें दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एयर में, दे एक्ट एज कोलॉइडल पार्टिकल्स दैट आर डिस्पर्स्ड इन द एयर और वो स्कैटर करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट सब समझ गए, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट। ओके, अब जानते हैं अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में। ओके, हमने एक पार्ट ऑफ द चैप्टर ऐसा कह सकते हैं कि कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं, सेपरेशन टेक्निक्स। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन यूज होते हैं टू गेट द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। सेपरेशन क्यों हम करते हैं? सेपरेशन करने से हमें अलग अलग जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उन्हें हमें स्टडी करने मिलता है। ओके, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स जो होते हैं, काफ़ी तरह के हेट्रोजेनस मिक्सचर्स वो सिंपल तरीकों से, जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन वगैरह से ये अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, बट ऐसे भी कुछ मिक्सचर्स होते हैं जो इतने सिंपल तरीके से नहीं सेपरेट होते हैं। तो हम उन मिक्सचर्स के बारे में जानेंगे कि ऐसे मिक्सचर्स को जो आसानी से सेपरेट नहीं होते हैं उन्हें कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this entire separation of mixtures I will be teaching you in accordance to the experiments that are given in your book। यानी कि मैं जल्दी से एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, यानी कि ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि डाई को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी कि ऑब्टेनिंग डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू ब्लैक इंक आपको दिया हुआ है, उससे आपको बोला गया है आप डाई निकालिए। तो आप कैसे करिएगा? तो ये हम करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। कैसे? तो आप एक बीकर लीजिए, उसमें पानी भरिए, ठीक है, उसे आप बंसन बर्नर पे चढ़ा दीजिए। उस बीकर के ऊपर आप एक प्लेट रखिए, चाइना डिश व्हाटएवर, उसमें आप अपना ब्लू ब्लैक इंक डालिए जिससे आपको डाई एक्सट्रैक्ट करना है। एंड जैसे ये पानी हीट होगा एंड इट विल टर्न इनटू इट्स वेपर फॉर्म, देन इनडायरेक्टली पानी हीट होने की वजह से आपका चाइना डिश में जो कंटेंट है, यानी कि आपका ब्लू ब्लैक इंक, ये भी हीट होने लगेगा। तो इसका जो वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इस ब्लू ब्लैक इंक का, दैट विल टर्न इनटू वेपर। तो अल्टीमेटली जब वेपराइजेशन बंद हो जाएगा तो आपको दिखेगा व्हाट इज लेफ्ट इज अ इंक रेसिड्यू, इट इज द रेसिड्यू विच इज योर डाई। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा एक्सपेरिमेंट से कि इंक क्या है? इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। तो इवेपोरेशन से हमारा वाटर अलग हो गया है ना, तो इसीलिए वॉलेटाइल सॉल्वेंट, यानी कि जो कि मतलब विच रीचेस इज बॉइलिंग टेम्परेचर एंड इट वेपराइजेस। ओके, तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो कि है वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो कि है वाटर,
फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो कि है डाई. ओके, उल्टा लिखा था. तो जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है वाटर वो उड़ जाता है और जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट है डाई वो रह जाता है. तो हाउ डू वी ऑब्टेन डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक? वी ऑब्टेन इट बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, है ना. तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. अब चलिए पढ़ते हैं द सेकेंड प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क. हम घर में भी हमारा क्रीम फ्रॉम मिल्क सेपरेट होता है, मिल्क फैक्ट्रीज में भी. सो लेट्स गेट टू नो क्रीम से हम मिल्क कैसे निकालते हैं. तो हम जानते हैं कि दिस इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, so how do we do it? I told you earlier also, it is done by this process called centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन से हम क्या समझते हैं? तो गाइस सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेसिकली जब एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें आप अपना कोलॉइडल मिक्सचर, यहाँ पे हम कोलॉइडल मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो आप अपना उसमें कोलॉइडल मिक्सचर डालिए. सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन जो होती है वो तेजी से स्पिन करती है उस मिक्सचर को, ठीक है, और उस तेजी से स्पिन करने की वजह से जो डेंसर पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो भारी पार्टिकल्स हैं, वो सेटल कर जाते हैं, वो एक्सिस से दूर आ जाते हैं, और जो हल्के द लाइटर पार्टिकल्स विच आर लेस डेंस दे कम ऑन टॉप, यानी कि दे मूव टुवर्ड्स द एक्सिस. तो ऐसे वो जो मिक्सचर है कोलॉइड का वो सेपरेट हो जाता है, और इसी तरह हमारा मिल्क और क्रीम अलग हो जाता है ना. क्रीम डेंस है, ज़्यादा सेटल कर जाता है, मिल्क इज द लाइटर, तो इट कम्स ऑन टॉप. सो दिस इज व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स. सो इसमें हमें फुल क्रीम मिल्क लेने बोला गया है टेस्ट ट्यूब में, उससे सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में डालिए और उससे मिल्क और आपका क्रीम अलग हो जाएगा. सो वी सी दैट द डेंसर पार्टिकल सेटल डाउन एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट टॉप. तो इससे हमें इन्फरेंस क्या मिला, कंक्लूजन क्या मिला, कि समटाइम्स जो पार्टिकल्स होते हैं एक सोल्यूशन में वो इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे. तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज करते हैं. In this mixture, this is spun rapidly, as a result of which denser particles settle down and lighter particles stay afloat. Okay? तो सेंट्रीफिकेशन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है? ये उन तरह के मिक्सचर्स के लिए यूज़ होता है जो कि जिनमें पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं और वो फिल्टर या उससे हम नहीं कर सकते सेपरेट. ओके, तो इसका एवरीडे यूज़ कहाँ है? Everyday uses is used for blood and urine test diagnostic laboratories में. It is used to separate butter from cream and it is used to squeeze water from wet clothes in washing machines. Okay? अब चलिए, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में जान लिया. So how do we separate cream from milk? It is by this process called centrifugation. अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो कि अपने अलग अलग डेंसिटीज की वजह से मिक्स नहीं होते हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने वाटर और केरोसिन लिया है. तो आप वाटर और केरोसिन का मिक्सचर लीजिए, उसे कुछ देर तक छोड़ दीजिए, तो आप देखिएगा केरोसिन और वाटर अलग अलग लेयर बना लिया है. क्यों? क्योंकि ये इनकी डेंसिटीज अलग अलग हैं. तो इन ऐसे मिक्सचर को जो कि इमिसिबल लिक्विड्स का है उससे सेपरेट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? वी यूज दिस प्रोसेस कॉल्ड डिकैंटेशन, है ना. डिकैंटेशन का हम प्रोसेस यूज करते हैं ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जो कि इमिसिबल लिक्विड्स के हैं. ओके, सॉरी अबाउट दैट. ओके, सो इसमें हमने एक मिक्सचर को लिया है एक सेपरेटिंग फनल में, ठीक है. मिक्सचर को कुछ देर छोड़ दो, केरोसिन ऑयल और वाटर अलग अलग हो जाएगा. उसके बाद आप नीचे ये जो स्टॉप कॉक है आप धीरे से इसे खोलो, तो आपका जो वाटर है इट विल पास डाउन, एंड एज सून एज ये वाटर पास डाउन हो रहा है इसका लेवल कम 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 होते जाएगा. फिर केरोसिन जैसे ही आपके स्टॉप कॉक के पास आएगा वापस से स्टॉप कॉक को बंद कर दीजिए. तो इससे हमारा क्या होगा, सेपरेटिंग फनल में आपका केरोसिन ऑयल अलग हो गया और हमारा वाटर निकल गया नीचे से. सो दिस इज सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, दैट इज हाउ वी डू इट. ओके, हम ये कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है, व्हाट आर इट्स एवरीडे एप्लीकेशंस? टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर एज वी डिड इन द एक्सपेरिमेंट. और आयरन को भी हम ओर से, हमें ये पता है ना कि हम आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो इसी तरह से होता है जब जो लाइटर स्लैग मोल्टन आयरन का होता है वो बॉटम ऑफ द फर्नेस से निकल जाता है और ओर रह जाता है. ओके, सो दीज आर दिस एवरीडे यूजेस.
and we use the process of decantation by using the separating funnel. Okay, so separating a mixture of two immiscible liquids, we use the process of decantation. Next up, we have the process of separating a mixture of salt and ammonium chloride. तो इसमें हम जानते हैं कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्प्योरिटी हम माना जाता है एक तरह से, और अमोनियम क्लोराइड इज समथिंग विच अंडरगोज समथिंग कॉल्ड, रुकिए इसमें नहीं दिखेगा, आई विल चेंज द कलर ऑफ द इंक. सो अमोनियम क्लोराइड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज द प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली अपने वेपर वाले स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना, विदाउट गोइंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. तो आप यहीं से समझ लीजिए कि हाउ विल दिस वर्क. तो इस एक्सपेरिमेंट में what are we going to do? We are going to use the process of sublimation. That's right. How are we going to separate a mixture of salt and ammonium chloride? Through the process of sublimation. आप एक बंसन बर्नर को लीजिए, उसके ऊपर एक चाइना डिश में अपना सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर रखिए. ठीक है, तो आप बंसन बर्नर से जब हीट कर रहे हैं उस मिक्सचर को, तो अमोनियम क्लोराइड अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ऊपर एक फनल रखिए इन्वर्टेड पोजीशन में, जिसको कॉटन प्लग से प्लग कर दीजिए. तो अमोनियम क्लोराइड जैसे ही सब्लिमेट होगा वो अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, बट सिंस इट कैनॉट एस्केप ड्यू टू द कॉटन प्लग ऑन टॉप, इट विल स्टे इनसाइड द फनल, इट विल कूल डाउन and it will convert into solidified ammonium chloride. And hence, after the sublimation process is complete, all that is left on this china dish is NaCl, which is your salt. Okay, तो ये होता है sublimation का प्रोसेस, जिससे हम sublimate जो भी substance हो जाता है और उसके साथ जो impurity है उसे अलग करते हैं. So how do we separate a mixture of salt and ammonium chloride? We separate it by the process of sublimation. Okay? हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि डाई से अगर हमारे पास ब्लू या ब्लैक इंक है, उससे हम अलग अलग उस कौन से कलर से बनाए, इज इट मेड अप ऑफ अ सिंगल कलर या इज इट मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये हम कैसे पता करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है फिफ्थ प्रोसेस. एंड हाउ डू वी डू दिस? वी डू दिस बाय द प्रोसेस ऑफ chromatography. तो क्रोमेटोग्राफी का हमारा जो एक्सपेरिमेंट दिया है उसमें व्हाट आर वी सपोज टू डू, हम एक पेपर लेते हैं, उसके 3 सेंटीमीटर ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ करिए. उस लाइन के बीचों बीच अपना जो भी है ब्लू या ब्लैक इंक, जिसमें आपको देखना है कि अलग अलग कलर से बना है या नहीं, उसका एक स्पॉट डालिए. ठीक है, ड्रॉप वन स्पॉट ऑफ इंक ऑन दैट पेपर ऑन 3 सेंटीमीटर लाइन के बीचों बीच. फिर वो जो पेपर है उससे आप ऐसे डालिए एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें नीचे में थोड़ा सा पानी है, जस्ट कि वो पानी इज जस्ट टचिंग दैट शीट ऑफ पेपर. ओके, फिर वो पानी जैसे ही सीपन करेगा उस पेपर को एंड इट विल टच योर ड्रॉप ऑफ इंक, देन आप देखिएगा कि वो ड्रॉप ऑफ इंक अलग अलग स्प्लिट हो गया, यानी कि उसमें जो भी कलर है जो कि सबसे ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व करता है वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होगा, फॉलोड बाय द कलर जो कि कम करता है. तो इसी तरह जो भी आपने इंक यूज़ किया है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं वो अलग हो जाएंगे. ये आपने कहाँ देखा होगा, जब बारिश के पानी में अगर आपका स्कूल बैग भीग गया हो और आप जेल पेन से लिखते हो, तो आप अपनी कॉपी खोल के देखिएगा तो आप देखिएगा आपका ब्लू इंक स्प्रेड कर गया है. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. ओके, सो ऑब्जर्वेशन क्या निकला हमारे इस एक्सपेरिमेंट की, कि जैसे ही वाटर स्प्रेड करता है तो उसमें जो इंक ड्रॉप है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट कर जाता है. So the dye in the black ink is a mixture of 2 or more colors is the conclusion that we got, and the colored component that is more soluble in water rises faster, and this way the colors get separated. इस प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. ये एक ग्रीक वर्ड क्रोमा से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है कलर, है ना. क्यों? क्योंकि इसे सबसे पहले इस प्रोसेस को कलर ही सेपरेट करने के लिए यूज़ किया गया था. इट इज़ द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. ओके, तो क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है? उन सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ हो सकती है जो कि सेम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं. तो इसका एप्लीकेशन एवरीडे यूज़ कहाँ कहाँ है?
to separate drugs from blood, pigments from natural colors, colors from dye. Okay, clear है chromatography. तो how is dye in a black ink a single color? ये हम कैसे पता करेंगे? We will get to know this from the process of chromatography. Moving on, हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स. तो हमने ये जाना हुआ है कि इमिसिबल लिक्विड्स क्या है. तो सिमिलरली इमिसिबल, मिसिबल जस्ट ऑपोजिट. मिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर होता है जो कि एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने किन मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को कंसिडर किया है? वी हैव कंसिडर्ड अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर. हमें क्या बोला गया है कि आप इसमें एसीटोन को अलग करिए और वाटर को अलग करिए. हाउ डू वी डू दिस? वी डू दिस by the process of, this is the sixth process, right? Yeah, we do this by the process of distillation. तो इससे हम डिस्टिलेशन के बारे में हमने जाना. डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब हम उन दो मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है. तो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या बोलता है कि एसीटोन और वाटर का मिक्सचर एक फ्लास्क में लीजिए, उसे हीट करिए. एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इज 60 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो सिंस उसका बॉइलिंग पॉइंट 60 है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एसीटोन व्हेन इट रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर फॉर्म. इट विल गो थ्रू दिस वाटर कंडेंसर और वो अपने लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा? वाटर. ओके, तो ऐसे हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स. ओके, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच टू मिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड. तो द डिस्टिलेट इज कलेक्टेड इन फ्रैक्शंस एट बॉइलिंग पॉइंट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. डिस्टिलेशन का एक ड्रॉबैक क्या है कि हम इसे बस उन्हीं चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है. ओके, so separating a mixture of two miscible liquids. How do we do it? We do it by the process of distillation. है ना? क्लियर है डिस्टिलेशन. अब चलिए उन लिक्विड्स का क्या या उन मिक्सचर्स का क्या जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है, उन्हें हम कैसे सेपरेट करेंगे. तो ये समझने के लिए हमने लिया हुआ है एक्सपेरिमेंट जिसमें वी सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी कि द डिफरेंट गैसेस इन एयर. वी नो दैट एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर. अब हम एयर के डिफरेंट गैसेस को कैसे सेपरेट करेंगे? उनमें से बहुत सारे गैसेस का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वी कैन सी इट्स प्रिटी क्लोज, है ना. तो इन्हें हम कैसे सेपरेट करेंगे? डिस्टिलेशन से तो नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टिलेशन से वही मिक्सचर सेपरेट हो सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है. तो यहाँ पे आता है द प्रोसेस ऑफ fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किन मिक्सचर्स के लिए यूज होता है? उन मिक्सचर्स के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कंसिडरेबल ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है बट हमें उन्हें सेपरेट करना है. तो एयर का हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिया है. एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है जो कि गैस है. उसके कंपोनेंट्स सेपरेट कैसे होंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. तो एयर हम जानते हैं कि गैस है. जैसे कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, गैस को हम अगर कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना पड़ता है तो वो कैसे चेंज होता है? दो तरीकों से. या फिर आप उस पर प्रेशर डालिए या फिर आप टेम्परेचर चेंज करिए, है ना. तो यहाँ पे अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे देन इट विल लिक्विफाई दैट. सो हम एयर को कंप्रेस और कूल करके लिक्विड एयर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, लिक्विड एयर को फिर हम वार्म करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालेंगे. तो अलग अलग गैसेस अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से सेपरेट हो जाएंगे. एक जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, नाइट्रोजन आर्गन विल गेट सेपरेटेड, and then what we will have is liquefied oxygen as we can see in this diagram. What does this show? Fractional distillation. For air. That's right. तो यहाँ से हमारा एयर अंदर आया. यहाँ पे हमने एयर को प्रेशराइज किया. फिर उसके बाद ये एयर जो कि गर्म है इसे हमने इस कंटेनर से निकाला जिसमें बहुत ठंडा एकदम आइस कोल्ड वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस, जिसकी वजह से दिस हॉट एयर विच इज कमिंग इन व्हेन दिस गोज आउट इट्स नाउ कोल्ड एंड कंप्रेस्ड.
देन हियर इज द सेपरेटर, जहाँ पे ड्यू टू द लो टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में है वो यहाँ से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस. वी स्टडीड अबाउट ड्राई आइस इन द लास्ट वीडियो इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में. उसके बाद यहाँ पे जब हम एक्सपैंड करेंगे तो जो नाइट्रोजन एंड आर्गन है विच आर लाइटर गैसेज दे विल कम आउट ऑफ हियर and what we will have left is liquid oxygen. Okay, so this is the process of fractional distillation to separate the different gases in the air. Okay, जिनके boiling points में इतना difference नहीं है. Okay, now we have the eighth and the last process of separation of mixtures, which is obtaining pure copper sulfate from an impure sample. इसे हम कैसे करेंगे? We do this by the process of crystallization. तो चलिए जाने. Final process is crystallization. So what we do in crystallization में basically हमारा एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि आप टेक इम्प्योर कॉपर सल्फेट का और इसे पानी में डिसॉल्व करिए, फिर उसे फिल्टर करिए. ठीक है, तो जो भी आपका फिर फिल्टर्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन बचा है उसे आप कवर करिए, फिल्टर पेपर से छोड़ दीजिए अबाउट अ डे, लेट इट कूल, एंड देन व्हेन यू कम बैक व्हाट यू विल सी इज little crystals of copper sulfate. Observation हमें क्या मिला कि we see the formation of crystals of copper sulfate on the china dish. Then ये मेथड क्यों evaporation से better है, क्यों we prefer crystallization over the process of evaporation? क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ solids होते हैं जो कि heat करने पे decompose हो जाते हैं, चार हो जाते हैं. यानी कि अगर आप sugar और water को separate करने की कोशिश करें through the process of evaporation, sugar is this solid which gets charred. Exactly. So ऐसे कुछ solids होते हैं जो decompose या चार हो जाते हैं being heated, which is why crystallization is a preferred mode of separation. Then also why इसकी कुछ particles हो सकता है कि filtration में dissolve ही रह जाए, तो इसलिए भी crystallization का process prefer किया जाता है over evaporation. Everyday use क्या होता है इसका? Purification of salt, sea water से कैसे separate करते हैं, और separation of alum crystals which is Fitkari from impure samples. So crystallization का process इसलिए use होता है. ठीक है, this is the diagram of the process of crystallization. अब चलिए इसमें advancement देखते हैं. Advancement of technology has, तो हमने 8 separation methods के बारे में जाना mixtures को separate करने के लिए. अब और भी बहुत सारे methods ऐसे आ चुके हैं. एक तो हमारा जैसे वाटर आता है, द टैप वाटर दैट वी गेट इन हाउस, इट गोज थ्रू अ लेंथी प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड लेट्स गो थ्रू दैट. रिजर्वॉयर से पानी आता है, वहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल डाउन करने को अलाउ होती हैं. फिर ये पानी जाता है लोडिंग टैंक में, जहाँ पे जो सेडिमेंट है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ का वो अलग होता है. फिर यहाँ से वाटर ग्रेवल में जाता है, फिल्ट्रेशन टैंक है ये बेसिकली, एंड देन क्लोरिनेशन टैंक में जाता है जहाँ पे क्लोरीन बैक्टीरिया को किल करता है, एंड देन वी गेट वाटर इन आवर टैप. ओके, सो one such example is the process of obtaining drinking water in the city from unclean water. The working is shown below, so I just explained it. अब हम जानेंगे, अब हम आ गए हैं अपने थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर में, विच इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. सो गाइज, इफ यू वॉच माई वीडियो ऑन इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, then you will get to know what are physical and chemical properties. अगर आप physical chemical properties समझ गए हैं तो आप ये नाम सुन के ही समझ जाएंगे physical और chemical changes क्या होते हैं. ठीक है, तो physical और chemical changes क्या होते हैं? ये ऐसे changes होते हैं जो कि result करते हैं in a difference in display. तो यानी कि ऐसे कोई भी चेंजेस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक एलिमेंट के चेंज लाते हैं, एक सब्सटेंस की चेंज लाते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उस सब्सटेंस का टेक्सचर, कलर, शेप, स्टेट, है ना, उसका कॉम्पोजिशन, रिजिडिटी वगैरह, उसमें अगर चेंज आया तो वो चेंज फिजिकल चेंज होगा. ठीक है, सो फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच रिजल्ट इन अ डिफरेंस इन डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, कलर, शेप. यानी कि अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया यानी कि वो फिजिकल चेंज है. तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल हैं कलर, हार्डनेस, डेंसिटी, रिजिडिटी. ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अगर इनमें चेंज आया दैट मीन्स द सब्सटेंस हैज अंडरगॉन अ फिजिकल चेंज. ओके, एग्जाम्पल, चेंज इन स्टेट इज़ अ फिजिकल चेंज. यानी कि वाटर से वाटर वेपर और या फिर वाटर से आइस, ये फिजिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही हैं. क्या चेंज हो रहा है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो ये सब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज अ फिजिकल चेंज.
Cool. These are some examples of physical changes. Now let's get to know about chemical change. तो जैसे हमने पढ़ा था कि physical change वो changes होते हैं जो physical properties में change लाते हैं, तो similarly chemical change वो changes होते हैं जो chemical properties में changes लाते हैं. Chemical properties यानी कि उसकी oxidation rate या फिर उसकी precipitation, change in color, and etc. Okay, so chemical changes are those changes which result in difference in display as well as composition. तो डिस्प्ले में भी चेंज होगा और कॉम्पोजिशन में भी चेंज होगा. तो केमिकल चेंजेस ऑफन इन्वॉल्व फिजिकल चेंजेस एज वेल एज केमिकल चेंजेस. So some indicators of chemical change include change in temperature, change in color. There's a noticeable odor, यानी कि एक noticeable smell coming after the reaction has begun. Then it is a chemical change. Formation of precipitate, formation of bubbles, etc. तो burning एक chemical change होता है क्योंकि one substance reacts with another to undergo a change in chemical composition. Burning of a candle is a physical as well as a chemical change because it burns as well, which is a chemical change. And the physical changes की wax जो होता है वो melt करता है, which is a physical change. So it is a chemical as well as a physical change. कुछ examples हैं rusting, ये एक chemical change है. This is a chemical change. This is a chemical change. Fireworks, chemical change. So you get it. अब जानते हैं types of pure substances के बारे में. Pure substances हमने जान लिया था क्या है. तो pure substances किन तरह के होते हैं? Pure substances are in the form of elements and compounds. So let's get to know about elements here. Okay? तो एलिमेंट ये जो टर्म है ये रॉबर्ट बॉयल ने इन्वेंट किया था 1661 में. उसके बाद एंटोइन लॉरेंस लावियोसियर इन्होंने एलिमेंट का एक डेफिनेशन बनाया जो कि वाइडली एक्सेप्ट हुआ. क्या डेफिनेशन था? कि एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसे हम और तोड़ नहीं सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मींस. ओके, यानी कि इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मींस. एलिमेंट 3 तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड. तो चलिए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज के बारे में जाने. मेटल लस्टरस होते हैं यानी कि उनमें एक शाइन, एक चमक होती है. ठीक है. डक्टाइल होते हैं यानी कि हम उन्हें वायर में ड्रॉ कर सकते हैं. मैलेबल होते हैं यानी कि उन्हें बेंड किया जाता है, उनका शेप चेंज किया जा सकता है. सोनरस होते हैं यानी कि अगर उन पे हिट करेगा तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट रिंगिंग साउंड. Metals are good conductors of heat and electricity because of the free valence electrons, which we will get to learn about in the next chapter. Then non-metals की properties क्या है? एकदम metals की उल्टी. Non-lustrous ऐसे कुछ shine नहीं होता है. Iodine एक exception है यहाँ पे. Ductile नहीं होते, malleable नहीं होते, sonorous नहीं होते, cannot conduct heat or electricity. इसका एक exception for example graphite है. Of course, there are exceptions, but then these are the general characteristics of non-metals. These are the general characteristics of metal. Okay. Lustrous तो diamond भी होता है, non-metal है because of its high refractive index, है ना. Metalloids क्या होते हैं भाई? तो metalloids are also a type of element. They have intermediate properties, यानी कि बीच की properties होती है metals की भी, non-metals की भी. ठीक है. Boron, this is like bromine, this is sort of a metalloid. ओके. अब हमने जान लिया एलिमेंट्स के बारे में. अब हम जानेंगे प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड्स के बारे में. कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस माने जाते हैं. क्यों? क्योंकि अ कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं इन फिक्स प्रोपोर्शंस. यानी कि फिक्स प्रोपोर्शंस मतलब एक कंपाउंड कोई भी बनाए, कहीं से भी बनाए, वो अगर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसमें फिक्स प्रोपोर्शन है ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ विच दैट कंपाउंड इज फॉर्म. जो भी नया सब्सटेंस बनता है कंपाउंड में वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज छोड़ देता है. यानी कि जो कंपाउंड में अगर 2 एलिमेंट से बने हैं तो वो जो 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, दे विल लीव देयर प्रॉपर्टीज एज ए एंड बी बिहाइंड व्हेन दे फॉर्म अ कंपाउंड एंड दे विल हैव अ होल न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एज ए बी कंपाउंड. ओके. तो ए बी जो कंपाउंड है इट विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन द एलिमेंट्स दैट ए बी इज मेड ऑफ. ओके. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. सो कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस. क्लियर?
So that was it, guys. अगर आपको इस पे quiz लेना है, if you want to take the quiz, then go on Unacademy, install the app and follow me there. उस पे मैंने quiz conduct कराए हुए हैं जो कि free live quizzes हैं. अगर आपको live quizzes करने हैं मेरे साथ, यानी कि बच्चों के साथ जो classes में हो रहे हैं, then get a subscription of Unacademy Plus. It's super cheap. Discuss it with your parents today and get a subscription. Use my referral code और आपको 10% off भी मिलेगा. Okay, you will get it just for 11,250. All the subjects, live quizzes, you get to talk to me, you get to have plus classes, we get to interact, you get to ask your doubts, and so much more. If you haven't already, then do subscribe to this channel. Do not forget to subscribe. Like this video if you liked my way of teaching. If you liked this kind of a video जहाँ पे मैंने 1 घंटे में आपका एक chapter complete करा दिया, hit the bell icon for notification. Comment down अगर आपको कोई भी doubt है कहीं पे भी, मैं ज़रूर explain करूँगी next video में. टेलीग्राम का हमारा लिंक है नीचे, आप उस पे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे. ओके, do not forget to install the app and get the subscription today on a discounted price. Do not forget my name, which is Shriya, which is also my referral code. Thank you so much for tuning in with Unacademy. Let's crack it. I'll see you for the next video in which I will discuss common doubts regarding this chapter itself before we start with the next chapter, which is atoms and molecules. Alright guys, I'll see you soon. Thank you so much. Let's crack it.